हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव गुप्ता। आज हमारे साथ हैं रजनीकांत जी, हु इज फाउंडर ऑफ जेब्रा कैपिटल। तो आज हम जानेंगे रजनी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेट फंड्स लाइक पीएमएस एंड एआई। तो कैसे हैं रजनीकांत जी? आई एम गुड, थैंक यू। तो रजनीकांत जी, आप ये बताइए कि ऑल्टरनेट फंड से पहले अगर हम थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहें, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट का क्या व्यू है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट? So, stock market is basically a collection of thousands of stocks, millions of investors, thousands of fund managers, analysts, fund houses, and so many participants like FIIs, DIIs. Collectively is the wisdom of all of these people. But majority of this wisdom is short term. Because every day there is a trading in the market, so there are traders, there are FNO traders, there are speculative trades, there are news flows based on which people buy and sell stocks, there are quarterly results again based on which a lot of people buy and sell stocks. So ultimately majority of this wisdom is short term, and there is very minority of the wisdom is long term. Okay, so I feel if you remain in minority, you will be able to create a very good long-term wealth. I just want to give you an example of HDFC FlexiCap Fund. So this is just for example purpose because this fund has got a 30-year of listing history. In the life of this fund, it has gone through all problems basically. Maybe 2000 ka .com burst, 2008 ka crisis, then you have NBFC crisis, you have COVID crisis, and so on. But if you see, since inception, this fund has given 30 years ka 19% return, CAGR, which converts into 188 times. So if somebody had invested 1 crore rupees since inception, it would have become 188 crores. Now, in the life of this fund, it has fallen more than 50% twice. Once more than 40%, 6 times more than 20%, and 9 times more than 10%. Okay, and if you see all this fall, you would have got scared basically. In fact, if you see calendar year 2010 to calendar year 2020, this fund's return is only 9% CAGR. Okay, and if you extend 3 months, the COVID one, you would have seen like 4-5% CAGR for a very long period of time. But ultimately, if you see a broader picture, it has actually delivered 19% CAGR over a very long period of time. Wow. But if you see, there might be lakhs of investors who would have come into this fund and gone out of this fund. A very minority of the investors would have made this 188 times without doing anything. Okay. So, as I say, there is a very minority who is not disturbed by these short-term noises. And the ones which are not disturbed by these short-term noises makes a lot of money in the long term. That's great. That's great. तो आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं फिर? इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है, तो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल और हाउ डू यू इन्वेस्ट? So I generally don't take a stock specific approach in the stock market because I feel I don't have the capability to analyze a particular business. Okay. Because business analysis requires a lot of channel checks, meeting management, and going to distributors, dealers, and so many other things, and see that whether company is doing well. So I don't have this capability personally. So I always take a portfolio based approach because ये approach लेने से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि स्टॉक लेने से उनका रिटर्न बन जाएगा, but we have to take a portfolio specific approach because portfolio construction is a very important part in investing. So उससे होता क्या है, आपका allocation है ना डिसिप्लिन हो जाता है कि आपको कौन से स्टॉक में कितना पैसा डालना है, ये फंड मैनेजर डिसाइड कर लेगा based on his methods basically. So I don't have any method to allocate capital to a particular stock. So there has to be some method to the madness. So that helps me allocate capital to appropriately through the fund manager. Second, if you buy a good fund manager, you automatically avoid getting into bad companies. Okay, so
if you have a good allocation and if you have bought right companies, in a long term, you should be able to create good wealth in the stock market. That's great. That's great way of removing all the hurdles. Yes. So, how do you select funds? So I don't actually select a fund. I try to select a good fund manager. Okay, because जब भी आपको कोई सर्जरी के लिए जाना होता है तो आप पहले अच्छा डॉक्टर ढूंढने का ट्राई करते हो. आप हॉस्पिटल के पीछे नहीं जाते हो. आप किसी को पूछते भी हो तो अच्छा डॉक्टर कौन है इसके बारे में इंक्वायरी करते हो. इवन इफ यू गो टू अ गुड हॉस्पिटल, यू अगेन ट्राई टू फाइंड अ गुड डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल. ओके, सो मेरा पूरा फोकस फंड मैनेजर पे है. एंड how do I select a good fund manager? I mean, everybody can have their own criteria. So my criteria is that I want a fund manager who has at least 15 to 20 years of experience investing in stock market. Because होता क्या है कि 15-20 साल में आपने सब टर्बुलेंसेस मार्केट के देखे होते हैं, तो एक आप अच्छे पायलट बन जाते हो बेसिकली टर्बुलेंस हैंडल करने के, राइट? सो वो मेरा पहला क्राइटेरिया है. सेकेंड क्राइटेरिया मेरा ये है कि फंड मैनेजर शुड बी आइदर ए ओनर or partner in the company. So it's like a doctor running his own hospital. Okay, so that he doesn't move from one fund to another fund, and the philosophy of the fund remains intact. Okay, the third criteria is that I don't want the fund managers to run too many funds. So if a fund manager is running 3-4 funds simultaneously, I personally don't like it. So I personally like to see whether one fund manager is managing only one fund. Okay, and उससे क्या होता है कि fund manager को भी focus और clarity आती है, and that might enhance returns in the portfolio. So these are some basic criteria which I see, and on the top of it, I want to see that the fund manager should be a good risk manager. Okay, so I would like to understand how he manages risk in the portfolio. So there are multiple ways of managing the risk. Maybe one way of managing risk is that buy quality and concentrate the portfolio. The second way of managing is that have a diversification to manage the risk. Okay, so there can be various ways, but I want to be very clear how the risk is being managed in the portfolio. Okay, and at last, I want the fund manager to have some investing framework and a philosophy. Okay, what kind of philosophy he has. For example, you can have a philosophy we will buy this particular kind of companies, this particular criteria if it satisfies. Okay, so we will not invest in particular sectors. So I want a philosophy based fund manager rather than a generic one. That's great analogy, रजनीकांत जी. तो आई थिंक रजनीकांत जी पहले बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं और फिर उन डॉक्टर्स में से उन डॉक्टर्स को चूज करते हैं जिनका हॉस्पिटल खुद का है. That's great. That's great. तो रजनीकांत जी एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होना क्यों जरूरी है? So होता क्या है, you need an anchor actually to hook to something basically. So क्या होता है, अच्छे टाइम बुल मार्केट में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है. जब बुरा टाइम आता है, यू नीड समथिंग टू एंकर टू बेसिकली कि मैंने ये फिलोसॉफी है तो ये टाइप के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं. सो विल दिस पर्टिकुलर बिजनेस सर्वाइव द क्राइसिस. ओके, सो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एक अच्छा हुक की तरह काम करता है स्टे करने के लिए फंड में, ताकि इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ कामनेस ऑल्सो ड्यूरिंग बैड टाइम्स. ओके, सो दैट इज व्हाई एन इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. That's great. तो अभी आपने फंड चूज कर लिया, डॉक्टर भी सिलेक्ट कर लिया, हॉस्पिटल भी हो गया, सब हो गया. अब मुझे एक बात बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एक फंड लेने के बाद पीएमएस या एएफ उसको रिव्यू कब करना चाहिए? सो आज की तारीख में तो लोग मतलब दिन में 3 बार है ना एनएवी देख लेते हैं. एनएवी इन द सेंस कि स्टॉक की वैल्यू देखते हैं 3 बार, 5 बार, 10 बार. शाम को इवन फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो उसका एनएवी या वैल्यू देखते हैं. सो मुझे लगता है कि अगर आप पीएमएस एएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट क्वार्टरली एक रिव्यू लेना चाहिए, और रिव्यू भी आपका इनपुट पे होना चाहिए कि व्हाट इज द इनपुट इन द सेंस कि पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन क्या है, तो और अगर कोई चेंजेस किए पोर्टफोलियो में तो उसका कारण क्या है. तो आपको इनपुट पे फोकस करना है.
सो आपका रिव्यू है ना, अर्निंग्स, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो चेंजेस, इन सब पे होना चाहिए। अगर आउटपुट आया है तो क्यों आया है, आउटपुट नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, इसके बारे में जानना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू ए क्वार्टरली रिव्यू। ओके, अगर आप साल में एक बार कर रहे हो तो और भी बेटर है, बिकॉज देन आप कम डिस्टर्ब होंगे। बट थैंक्स टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एज यू सेड राइटली, हम में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो डेली की डेली चेक करते हैं, बट ठीक है, तो आइडियल इज क्वार्टरली और हाफ ईयरली रादर देन चेकिंग द डेली पोर्टफोलियो। अच्छा, आप एक बात बताइए कि एक आइडियल इन्वेस्टर या आइडियल इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर के पास या आपके पास कितने फंड्स, कितने पीएमएस, कितने आईएफ होने चाहिए? सो बेसिकली जब मैं मेरे दोस्तों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 15-20 म्यूचुअल फंड है, 5-6 पीएमएस है, 2-3 एआईएफ है, एंड उससे ऊपर मतलब 50 स्टॉक्स, 50 से 100 स्टॉक खुद भी लिए हुए हैं। सो मेरे को लगता है इससे कुछ क्लैरिटी नहीं आता है। ओके, सो अगेन एवरीबॉडी हैज हिज ओन चॉइस, नथिंग रॉन्ग विथ इट, बट अकॉर्डिंग टू मी आपने 3 अच्छे मैनेजर चूज करना चाहिए। Okay, rather than having so many funds or stocks, you should choose 3 good managers. So होता क्या है कि अगर आपने 3 अच्छे मैनेजर सेलेक्ट कर लिए एंड आपने उसको क्वार्टरली रिव्यू करना चालू कर लिया, तो एक आपको क्लैरिटी रहती है कि तुम्हारे पास खाली 3 ही चीज है देखने के लिए, और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्यों कर रही है, और अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। सो होता क्या है कि इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आता है। अगर आपने 3 फंड भी ले लिए तो मोटा मोटा आपने 80 से 100 स्टॉक्स लिए, अभी इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और क्या हो सकता है। सो हो सकता है कि 2 फंड अच्छा कर रहे हो, 1 फंड अच्छा नहीं कर रहा हो, या 1 ही फंड अच्छा कर रहा है, 2 फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपको है ना रीअलोकेशन ऑफ कैपिटल में वो हेल्प करता है कि वंस यू नो कि एक पर्टिकुलर फंड 3 में से अच्छा नहीं कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड आपको पता है रीजन कि वो क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, एंड यू ऑल्सो नो दैट द रीजन इज टेम्पररी। ओके, या आपको उसका रीजन पता है, तो आप जब वो फंड अच्छा नहीं कर रहा है तब आप उसमें और ज्यादा पैसा लगा सकते हो। सो इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर इन्वेस्टिंग प्रोसेस। सो मेरे को लगता है 3 फंड से ज्यादा हम लोग कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, मतलब सो अगर आपने 3 फंड ले लिए एंड अगर उसको मॉनिटर करते रहे तो आउटकम शुड बी गुड एक्चुअली। ओके, ग्रेट। एक बात बताइए रजनी जी, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सबके माइंड में कि हम लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, पीएमएस में करना चाहिए या एआईएफ में करना चाहिए, तो इसको लेके आपका क्या व्यू है? अगेन इट्स द सेम थिंग कि आई डोंट लुक एट लाइक दैट। ओके, सो आई लाइक ए मैनेजर इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो, आई लाइक ए पर्टिकुलर मैनेजर इन पीएमएस ऑल्सो, आई लाइक ए पर्टिकुलर मैनेजर इन एआईएफ ऑल्सो। सो मेरा कंटेनर तो अगर कंटेनर, ये तो सब कंटेनर्स है, कंटेनर अंडरलाइन तो स्टॉक्स ही है, तो मेरा सिलेक्शन अगेन जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन में भी मैंने बोला आपको, मेरा फोकस मैनेजर पे रहता है। सो मेरे को कुछ मैनेजर्स म्यूचुअल फंड में भी अच्छे लगते हैं, मेरे को कुछ मैनेजर्स पीएमएस में भी अच्छे लगते हैं, मेरे को कुछ मैनेजर्स एएफ में भी अच्छे लगते हैं, तो माय होल फोकस इज ऑन द मैनेजर। ओके, सो अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड अगर 2 से 3 आपने फंड मैनेजर अच्छे सेलेक्ट कर लिए, तो आई थिंक दैट्स गुड एनफ। अच्छा, व्हाट इज योर टेक ऑन डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी और कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी? व्हिच स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर एज पर यू? So again, as I told you in my previous conversation, my focus is on the manager. Okay. So every manager is his own natural style of investing. Okay. So I personally like concentration with quality. Okay. However, every fund manager has his natural style. So some fund manager may be good with diversified strategy also. So what is your view on absolute versus relative fund? सो ये एक बड़ा डिबेट है, मतलब कि एब्सोल्यूट फंड लेना चाहिए या रिलेटिव फंड लेना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा एक एक्सप्लेन करता हूँ कि एब्सोल्यूट फंड में क्या होता है कि एक तुम्हारा स्ट्रिक्ट फिलोसॉफी होता है, स्ट्रिक्ट स्टाइल होता है, एंड आपका पूरा आपका स्टॉक पिकिंग बॉटम अप स्टाइल से होता है। सो
आप है ना बहुत ही इंडेक्स के बहुत ही कम पार्ट को मिरर करते हो। फॉर एग्जांपल आपका बेंचमार्क निफ्टी है और आपने खाली 10% जो निफ्टी में वेट है वो स्टॉक लिए है, ओके, और आप निफ्टी से 90% अवे हो, तो अगर वो एब्सोल्यूट फंड हो गया, बिकॉज आप कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, कंपनी की क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जब ये स्टाइल चलता नहीं है या उसमें या तो 90% वाला जो दूसरा बेंचमार्क का जो दूसरे स्टॉक से वो चलते हैं, तो यू विल सी अंडर परफॉर्मेंस इन दिस काइंड ऑफ फंड्स बेसिकली। सो एब्सोल्यूट फंड्स में क्या होता है, आइदर देयर विल बी ए ह्यूज आउट परफॉर्मेंस और देयर विल बी ए ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस। बट उसको दूसरी तरीके से देखना चाहिए कि सपोज आपने एब्सोल्यूट फंड लिया है, तो उसका अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बेसिकली, कि आरओसी क्या है, यू नो अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है कंपेयर टू द बेंचमार्क, ओके। So that will actually give the real picture of where you have invested and what is का benchmark का metrics basically. For example, किसी फंड ने समझो दिवीस में 10% लेके रखा है, अभी दिवीस तो निफ्टी में है नहीं, फंड 5% गिर जाएगा एक ही स्टॉक की वजह से, whereas it is not present in the benchmark only, okay. So you may look like a fool basically, okay. ऑन द अदर हैंड रिलेटिव जो फंड्स रहते हैं मोस्टली बेंचमार्क अगेंस्ट रहते हैं, सो बेंचमार्क से 2-3% का अल्फा जनरेट करने का कोशिश करते हैं। एंड इफ यू सी BFSI जो इंडेक्स में 30% है फॉर एग्जाम्पल, एंड आपने अगर ओवरवेट कर लिया कि आप बुलिश हो, आपने 30 की जगह 35% फाइनेंशियल्स खरीद लिए, या तो आपने अंडरवेट कर दिया उसको 20% इफ यू आर नॉट बुलिश ऑन दैट, सो आप इंडेक्स से ज्यादा दूर नहीं जाओगे बेसिकली, ओके, एंड दैट कीप्स मोस्ट ऑफ द पीपल हैप्पी। सो मेरा मानना ऐसा है कि आपको अगर आप 3 मैनेजर को सेलेक्ट कर रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट एंड क्राइटेरिया यू कैन सेलेक्ट 2 रिलेटिव 1 एब्सोल्यूट, और 2 एब्सोल्यूट 1 रिलेटिव, और मे बी ऑल एब्सोल्यूट, और मे बी ऑल रिलेटिव, ओके। दैट इज हाउ यू कैन सेलेक्ट द मैनेजर। ओके, तो इसका मतलब ये समझे कि बिफोर कंपेयरिंग यू शुड बी अवेयर वेदर यू हैव इन्वेस्टेड इन ए एब्सोल्यूट फंड और यू हैव इन्वेस्टेड इन ए रिलेटिव फंड। हाँ, and all your outperformance and underperformance should be viewed with the understanding that ये absolute fund है, कितना दूर है इंडेक्स से, इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। बट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस आई वुड से जितना पोर्टफोलियो का अर्निंग्स आएगा उतना ही रिटर्न आने वाला है। सो योर फोकस शुड बी ऑन द अर्निंग्स बेसिकली, एंड नॉट ऑन द, आई मीन रिलेटिव फंड्स भी मतलब वो भी अर्निंग्स को ही ट्रैक कर रहे हैं, तो जितना वहां पे भी अर्निंग्स आएगा, ओके, तो उतना ही आपका रिटर्न मोटा मोटा उतना ही आने वाला है। तो फाइनली डेस्टिनेशन इज अर्निंग वेदर यू आर होल्डिंग एब्सोल्यूट फंड और रिलेटिव फंड। एब्सोल्युटली, द ओनली डिफरेंस वुड बी इन द ड्यूरिंग दैट जर्नी। या द राइट तो रजनीकांत जी एक बात बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वेदर क्लैरिटी ऑफ ए फंड मैनेजर और स्मार्टनेस और डायनामिज्म? सो मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज, हर चीज में एक ही चीज मेरे लिए महत्व की है, वो है मेरे को क्लैरिटी चाहिए हर चीज में, ओके। वेदर आई एम इन्वेस्टिंग और वेदर आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई नीड क्लैरिटी, बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग स्मार्ट, ओके। सो क्लैरिटी लिए मेरे लिए हर चीज में पैरामाउंट है, ओके। सो आई लाइक क्लैरिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। That's great. I think रजनी जी आपसे बात कर बहुत कुछ चीजें सिंपल शब्दों में समझ में आई। थैंक यू। तो आई थिंक वी शुड चूज डॉक्टर रादर देन हॉस्पिटल। तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी डॉक्टर, एंड जितना क्लैरिटी रहेगा उतना इन्वेस्टमेंट में अच्छा रहेगा एंड सिंप्लिसिटी रहेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डेस्टिनेशन इन स्टॉक मार्केट इज अर्निंग्स। जब तक अर्निंग्स है तब तक आपका डेस्टिनेशन सुंदर ही रहेगा, आप पहुंचने वाले हैं। जर्नी चाहे कैसी भी हो, तो वी हैव टू लिव विद द जर्नी।
रजनीकांत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ प्लीज। क्या आपके माइंड में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पॉडकास्ट के लिए? हाँ, तो मैं बहुत दिनों से इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे पॉडकास्ट करना चाहता था। तो आई थिंक मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि हम लोग इन्वेस्टिंग बिहेवियर एंड डिसिप्लिन पे पॉडकास्ट करेंगे, बिकॉज मेरे को लगता है कि इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन और बिहेवियर इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ओनली डिसिप्लिन एंड बिहेवियर क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ इन इन्वेस्टिंग। ग्रेट, गुड टू नो। तो विल मीट सून एंड रजनी से जानेंगे कि इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। यस, थैंक यू।